Good morning students, I am Vijendra Jain. Welcome you in this third video of chapter number 2 polynomial of standard 9. In first video we have seen parts of polynomial. What is polynomial? Polynomial की जो 5 parts थे that we have seen in the first video. We have seen terms, we have seen variable, constant, coefficients and degree. According to terms we have seen monomial, binomial, trinomial and polynomial, or according to degree we have seen linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. Now in next video we have seen exercise 2.1 of chapter number 2. Now today we are going to solve exercise 2.2 which is based on zeros of polynomial. यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल की भी वैल्यू निकालेंगे. यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ध्यान से सुनना जरा कि सबसे पहले यहाँ पर हमको x की कुछ वैल्यूज दी होंगी कि जिनको हमको x के साथ रिप्लेस करना होगा. तो इन दैट वे हम उसको सॉल्व करेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.2 इन विच क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px is equal to 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2. यानी ये डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को उस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे. क्या करेंगे, x को उस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. इन फर्स्ट px is given what, 5x minus 4x square plus 3. यहां पर हमको क्या रखना है, x is equal to 0. अब जब x is equal to 0 रखेंगे तो polynomial will be p0. Polynomial will be p0. So 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3. So it will be 0 minus 0 plus 3. So p0 will be 3. So this is your value of polynomial at x is equal to 0. Second, in second, x is equal to minus 1 we are going to put. So p minus 1 is what, 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 whole square and plus 3. Clear? तो यहां पर हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, minus 1 से. अब हम क्या करेंगे, minus 5 minus 1 whole square will be plus 1 but minus is given, so plus minus 4 and plus 3. So here minus 9 plus 3 will be minus 6. Is that clear? So p minus 1 की जो value है that is minus 6. And third is given x is equal to 2. So यहाँ पर हम क्या find करेंगे, p2 is equal to what, 5 into 2 minus 4 into 2 square and plus 3. Is that clear? So here 5 2s are 10 minus 4 4s are 16 and plus 3. 2 का whole square 4 होगा and 4s are 16. So 13 10 and 3 13 minus 16. तो p2 we will get minus 3. Is that clear? So here how we do this sum, हमने क्या किया कि x की जो वैल्यू थी उसको हमने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया and we find the value of the polynomial. So this is the way from that we find the value of polynomial. Now question number 2. Question number 2 क्या दिया है कि again find p0, p1, p2 for each of the following polynomial. Here 4 polynomials are given. सबसे पहले that first one, py is equal to y square minus y plus 1. See, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, py is equal to polynomial in y that is y square minus y plus 1. यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले p0 फाइंड करेंगे. p0 0 square minus 0 plus 1. तो 0 square 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता नहीं है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p0 will be 0 minus 0 plus 1. So p0 will be 1. Clear? Next,
सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है, P1। P1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सो 1 माइनस 1 प्लस 1, अब प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 विल बी 1, सो P1 वी विल गेट, देखिए यहाँ पर ये भी प्लस में 1 है, ये भी प्लस में 1 है, दोनों ऐड होंगे 2 हो जाएगा, एंड 2 में से माइनस 1 हम करेंगे, देन वी विल गेट P1। नाउ P2, सी P2 कैसे फाइंड होगा, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 1, 2 स्क्वायर विल बी 4, 2 स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा, माइनस 2 प्लस 1, 4 एंड प्लस 1 5, माइनस 2 विल बी 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ P2। इज दैट क्लियर? सो इस तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, P0 इज इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू 1 एंड P2 इज इक्वल टू 3। नाउ फॉर नेक्स्ट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, that is given t is variable over here, 2 plus t plus 2t square and minus t cube। अब यहां पर हम सबसे पहले P0 फाइंड करेंगे, जीरो का मतलब जहां पर भी t है उसको जीरो से रिप्लेस कर देंगे, सो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो, so P0 will be 2। next P1 we are going to find, P1 फाइंड करना है, तो 2 plus 1 plus 2 into 1 square minus 1 cube, is that clear? so 2 plus 1 plus 2 minus 1, because 2 का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब सब सेम होगा, 1 का सॉरी 1 का जो क्यूब है वो भी 1, 1 स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई 2 विथ 2 1 और 2, तो प्लस 1 माइनस 1 विल बी 0, तो हियर योर आंसर P1 इज 4। नाउ थर्ड, दैट इज P2। इसको जरा ध्यान से देखना कि यहां पर हमको t को किससे रिप्लेस करना है, 2 से रिप्लेस करना है, सो 2 प्लस इन प्लेस ऑफ t 2 प्लस 2 t square means 2 square and t cube means 2 cube, so 2 plus 2 2 cube 2 square क्या हो जाएगा 4 and 4 2s are 8 and here 2 cube is also minus 8, plus 8 minus 8 cancel, we will get 4 here। is that clear? now question number 3, px is equal to x cube। अब यहां पर सिंपल P0 0 क्यूब, तो P0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, राइट। नेक्स्ट P1 1 क्यूब, तो P1 will be again 1, P2 2 क्यूब, तो P2 will be 8। is that clear? now next question number 4, that is Px is equal to x minus 1 x plus 1। see, अब यहां पर हम सबसे पहले P0 फाइंड करेंगे, P0 will be what, 0 minus 1 and 0 plus 1, तो यहां बचेगा minus 1 मल्टीप्लाई प्लस 1, तो इट इज minus 1, तो P0 will be minus 1। clear? now we are going to find P1, 1 minus 1 और 1 plus 1, अब 1 minus 1 will be 0 multiply 2 will be 0, P1 will be 0। now P2 will be what, 2 minus 1 and 2 plus 1, 2 minus 1 1 multiply 3, then P2 will be what, 3। is that clear? so यहां पर हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे उस वैल्यू से कि जिसमें हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Now this is question number 3. In question number 3, what we are going to do, verify whether the following are zeros of polynomial।
whether the following are zeros of polynomial indicated against them. Indicated against them means ये x is equal to minus 1 upon 3, x is equal to 4 by 5, x is equal to minus m upon l, x is equal to minus 1 upon root 3, 2 upon root 3. ये जो x की वैल्यू है ये पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं या नहीं हो सकते. तो ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे? सी, हम वेरीफाई कैसे करेंगे? जब हम इन वैल्यूज को x के प्लेस पर पॉलिनोमियल में रखेंगे और उसकी वैल्यू अगर हमको जीरो मिलती है देन ये x की वैल्यू जीरो है, और अगर जीरो नहीं मिलती इसका मतलब ये जीरो नहीं है. सो कीप इट इन योर माइंड कि जो भी x की वैल्यू दी है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज गिवन अगेंस्ट द पॉलिनोमियल, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज गिवन अगेंस्ट द पॉलिनोमियल, उसको पुट करने पर, x के प्लेस पर रखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलती है, इट मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ, that is the zero of that polynomial. So let's see how it works. See, यहां पर px is equal to क्या दिया है? 3x plus 1. px is given 3x plus 1. अब यहां पर x को किससे रिप्लेस करना है? minus 1 upon 3 से. तो क्या लिखेंगे? p minus 1 upon 3 is equal to what? 3 multiply minus 1 upon 3 plus 1. 3 से 3 cancel, minus 1 plus 1. So p minus 1 upon 3 will be 0. It means 0 आ गया आंसर. तो ये जो x की वैल्यू minus 1 upon 3 है, it is the zero of this polynomial. Clear? तो जहां पर आंसर 0 आ रहा है वहां पर हम क्या लिखेंगे? वहां पर लिखेंगे x is equal to minus 1 upon 3 is 0 of px is equal to 3x plus 1. Now question number 2, px is given what? 5x minus pi. x की जगह पर यहां क्या रखना है? 4 upon 5. तो सी, p 4 upon 5 is equal to 5 into 4 upon 5 minus pi. 5 cancel, 4 minus pi. So this is the value. वैसे भी अगर इसमें हम पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो भी आंसर 0 आने वाला नहीं है. तो यहां पर आंसर इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है. इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, px is given what? x square minus 1. x square minus 1 दिया तो सबसे पहले p minus 1 फाइंड करेंगे. minus 1 होल स्क्वायर minus 1, तो 1 minus 1 will be 0. तो p minus 1 is equal to 0 and p plus 1 क्या आएगा? 1 square minus 1, so that is also 1 minus 1. तो p1 also 0. So therefore देखो यहाँ पर तो जगह नहीं थी लेकिन यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ. Therefore x is equal to minus 1 1 are zeros of px is equal to x square minus 1. Is that clear? Now next question number 4 और 5 इजी है. शायद उसमें एक जगह x क्यूब दिया है और एक और, वो भी बहुत इजी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यू विल सी. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया? px की वैल्यू lx प्लस m है. यहाँ पर x क्या रिप्लेस करना है? माइनस m अपॉन l. तो p माइनस m अपॉन l इज इक्वल टू वॉट? l इंटू x की जगह पर माइनस m अपॉन l प्लस m. l कैंसल, माइनस m प्लस m. अब माइनस m प्लस m विल बी 0. सो p माइनस m अपॉन l. इसका आंसर भी हमको क्या मिला? 0. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज 0 ऑफ px. क्लियर? नाउ यहां पर ये बहुत ध्यान से देख लेना आप लोग. px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 इज गिवन. हम क्या रखेंगे? p माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1. अब ये तो हमको पता है कि रूट का जो स्क्वायर करते तो वही नंबर हमको वापस स्क्वायर रूट कट हो जाता है उससे. 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 हो जाएगा. माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा. 1 माइनस 1 विल बी 0. सो 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इसका 0
होगा। नाउ 2/3 आप अपने आप करना, ठीक है ना, 2/3 जो है वो आप अपने आप रखना। ओके, शायद यहां पर भी √3 ही दिया होगा, यहां पर भी आपको क्या दिया होगा, 2/√3 दिया होगा। सो ये आप अपने आप होमवर्क में करना, राइट। नाउ दिस लास्ट P1/2 इज इक्वल टू 2 1/2 प्लस 1, तो 1 + 1 विल बी 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहां पर P1/2 की वैल्यू हमको 0 नहीं मिली, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो x की वैल्यू है वो px का 0 है या नहीं, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वहां पर हम उस वैल्यू को x से रिप्लेस करेंगे, और अगर हमको आंसर 0 मिल रहा है, अगर हमको आंसर 0 मिल रहा है, इट मींस दैट वैल्यू इज 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, और 0 नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो उसका 0 नहीं है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। Now this is the last exercise. This is the last exercise of exercise 2.2. Find the zeros of polynomial. अब वेरी स्टार्टिंग ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमको पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हैं तो उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में हमको क्या रखना पड़ेगा, 0। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो सबसे पहले px इज गिवन व्हाट, x + 5। अब इसका जीरो फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। सी, ये तो एक सिंपल वे हो गया। इसके अलावा भी मैंने आपको एक और वे बताया था कि अगर ये पॉलिनोमियल सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं, ये सारे कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हमको यहाँ पर a और b कंसीडर करके करें कि a की वैल्यू ax + b से इसको कंपेयर करते हैं, अगर हम ax + b से इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी बता देता हूं कि यहां पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, px इज इक्वल टू ax + b। अगर इस वे में जाना है तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 एंड b दैट इज -5। इज दैट क्लियर। तो हमारे जीरो वाला फॉर्मूला क्या था, -b/a, तो -b मींस -5 और 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 अपॉन में 1 का कोई मीनिंग होता नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल वे में करेंगे हम इसको, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। दिस इज योर आंसर। सारे सम इजी हैं, वैसे तो मैं सारे ही आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं। अगेन वी जस्ट राइट 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 के पास -2 जाएगा +2, x इज इक्वल टू 2/3। इज दैट क्लियर। नाउ सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब हम 3x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, जब हम यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x अगेन विल बी 0, बिकॉज 3 0 के अपॉन में जाएगा, इट विल बी 0। नाउ हियर अगेन ax इज इक्वल टू 0, सो x अगेन 0। सिंपली cx + d इज इक्वल टू 0, d उस तरफ जाएगा, cx इज -d, x इज इक्वल टू -d/c। So by this way we just find the zeros of the given polynomial. So here your exercise 2.2 is completed. I hope कि each and every question सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने बहुत एंजॉय किया होगा इनको सीखने के साथ साथ। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, जब भी आप मैथ्स का वीडियो देखते हैं तो प्लीज अपने साथ टेक्स्ट बुक रखें। टेक्स्ट बुक में क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहता है, ये सारी की सारी डिटेल्स वहां पर दी हुई है, और मैं भी क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं वो भी आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।